Hello bachcho, good morning. So I welcome you all again to your favorite channel Physics Made Easy by DCP. So myself Dayal Chandra Pathak, I welcome again you all in this lecture. Today we will discuss about class 12th physics. In class 12th we were discussing about electric potential and capacitance, second chapter according to the NCERT. In last lecture we have discussed that what is electric potential, what is electric potential difference between 2 points, and then we come to know that electric potential or electric potential difference both are scalar quantity and their unit is volt. The device which is used for their measurement, potential difference measurement, is called voltmeter, and the unit of potential in CGS system is state volt. 1 volt equal to 1 upon 300 state volt. Now today we will continue the same chapter. तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो क्या पढ़ेंगे आज? आज का टॉपिक हमारा होगा नंबर फर्स्ट, हम डिस्कस करेंगे व्हाट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference and electric field. So what is the topic today? Today topic is that relation we will discuss between two things. Relation निकालना हमने दो चीजों का, किस किस का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड. Now we know that every charge produces its own electric field, and in its electric field between 2 points there is some potential, some energy difference will be there. We have to do some amount of work to move from one point to another in that electric field. This all we have discussed. हमको पता है कि कोई भी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क. दैट मीन्स देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट रिलेशन. सो व्हाट वी विल डू, लेट फॉर दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर, let this is a uniform electric field. क्या कंसीडर करना है आपने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E. What is the strength of E? It is coming from left to right. That means left side there will be positive, right side there will be negative. I have told you that from where the electric field lines will come, that side there will be plus. Where they will go, there will be minus. Yes or no? Let's consider charge. I am going to consider charge in this electric field. Suppose at point A there is a charge plus Q. Let me consider that in this field, let at point A there is a charge Q. So what is the first step? If we will take this charge in this electric field, अगर हमने इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया है तो हम जानते हैं whenever charge will be in electric field, this is uniform, so its value will remain same at every point. So what will be there? Force on charge in electric field. We all know electric field is force per unit charge. Yes or no? Cross multiply करेंगे तो F equal to QE. This is the physical significance of electric field, that whenever a charge is in electric field there will be a force on it. जब कोई भी चार्ज, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, there are two type of charges, plus or minus. In both the charges there will be a force in electric field. What is that force? How we find out? That force F equal to, here it will be QE, equation number A. Now see here, this is plus charge, this side plus, this side minus. So this charge will move in the direction of electric field. That means the force on this charge will be same in direction. This is electrostatic force. So E by Fe we are going to represent. Now, so that means due to this force, this charge will move in the direction of electric field. It will start moving. If we will apply the formula Newton's second law, there will be acceleration on this charge. Now, what we have to do? We have to take this charge. हमने क्या करना है, हम इस चार्ज को पॉइंट ए से कहाँ लाना चाहते हैं, एट पॉइंट बी, डिस्टेंस dr. We want to displace it distance dr without changing kinetic energy, बिना kinetic energy change की. But sir, it is how it is possible.
तो पॉसिबल ही नहीं। Why it is not possible? सर there is a force on the charge. चार्ज पे क्या है, एक फोर्स है, उसकी वजह से उस पर एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो बाय न्यूटन्स लॉ there will be change in velocity. If there will be change in velocity, there will be change in kinetic energy. So what we will do here, we want to displace it from A to B without changing kinetic energy. That means you can say without acceleration. Means acceleration should be zero. We want to keep the acceleration zero. So for that, what we have to do? We will apply force on it, because we know that potential. First of all, we know potential difference between A and B क्या होगा? VB minus VA. Which one will greater? We are not considering it. Potential यहाँ से आने जा रहे हैं, तो VB minus VA. Let's see. VB minus VA equal to work done by external upon Q. This is the formula. We all know about it. So what for this? If you want to make its acceleration zero, if you want to make it without change its kinetic energy, so you will apply external force on it. Let there is external force on it, F equal to QE. Now तो force will balance, F किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल के। तो टोटल फोर्स इस पर क्या दिखाई देगा? जीरो। अब हम इसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे, जो भी वर्क डन हमें करना पड़ेगा, दैट इज आवर वर्क डन। सो वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज कॉल्ड ना। सो इफ there will be acceleration, there will be change in kinetic energy. If there will be change in kinetic energy, work done will convert to change in kinetic energy, because work energy theorem we know W equal to half m v square minus half m u square. So अगर यहाँ पर acceleration जीरो नहीं हुआ, अगर यहाँ पर acceleration जीरो नहीं होता तो क्या होता? चेंज इन वेलोसिटी होती। चेंज इन वेलोसिटी होती तो क्या होता? वर्क होता। मीन्स कुछ वर्क किस में चेंज हो जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर जो वर्क डन आता है उसकी रीडिंग क्या आती? कम आती। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग आता। सो वो तो गलत हो जाता। इसके लिए क्या किया गया? एक्सटर्नल फोर्स। हियर एफ एक्सटर्नल कितना है? माइनस क्यूई। वाई सर देखिए, प्लस क्यूई दिस साइड, ये इसके अपोजिट जस्ट इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो इस पे कितना होगा? माइनस क्यूई। यस, अब हम इसको उठा के यहां पर ले जाएंगे, तो अब इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा है। सो वन विल चेंज इट फ्रॉम 1 to 2 व्हाटएवर वर्क वी हैव टू डू, दैट इज आवर वर्क। तो अब इसको यहां पर से यहां पर ले जाने में जो भी काम करेंगे वो हमारा होगा। चलिए, दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी राइट dV। पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट बाय dV। एफ एक्सटर्नल क्या होता है? एफ एक्सटर्नल डॉट dr, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन अपॉन Q। Work equal to force displacement. Force is of external. So what we will do? Now dV equal to F external minus QE dot dr upon Q. Q cancel. So dV is coming minus E dot dr. This is what? This is the relation between potential difference and electric field. This is the relation. So proof, this is the. Now what this relation indicate? Potential difference is negative of electric field. That means the direction in which electric field lines will move, वो डायरेक्शन जहां को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगे, their potential will decrease. वहां को पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज. एंड इन फर्स्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑल. We have discussed about it. So this minus sign is going to represent that the direction of where electric field will move. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ को आ रहा है, तो इस जहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वहां को पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा. यस, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी इजी. सो दिस वाज वेरी इजी. नाउ व्हाट इज इट्स एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ here this we can write, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if there is no same direction, E dr cos theta we can write it. E dr cos theta हम इसको लिख सकते हैं, because dot product is cos theta. Theta is the angle between here, क्या होगा theta? Here theta equal to क्या है? Angle
बिटवीन ई एंड डी आर। ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। सो दिस नेगेटिव साइन इज जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट कि जहां को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वहां को पोटेंशियल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस रिलेशन इज फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस रिलेशन इज कमिंग ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और विच इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इजी पोर्शन टुडे। नाउ लेट्स सी, कुछ क्वेश्चन करते हैं, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है। यू हैव टू अप्लाई दीज रूल्स in different questions, then only you will come to know that how to find out. Now let's see, so acceleration should be 0. इस कंडीशन में आपको acceleration 0 बनाना होगा. For that you have to apply some external force on it, because if there will be acceleration there will be change in kinetic energy. If there will be change in kinetic energy, by work energy theorem there will be a work done इन चेंज इन द काइनेटिक। तो कुछ वर्क डन किसमें खर्च हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आने लगेगा, रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। नाउ सपोज द क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to B, B to C, C to D, and D to E. Let our task to find the potential difference, and what condition is given. Suppose this is a uniform electric field is given. This is a uniform electric field E equal to 20 Newton per Coulomb. This is constant. Uniform है तो uniform का formula applicable होगा. This is a uniform electric field. Now there is a cube square inside it. A, B, C, D. Its length is how much? 1 meter. Let the length is 1 meter. Now we have to find out the potential difference for this diagram for each condition A to B. Number first. चलिए शुरू करते हैं. Number first is A to B. Now we know potential difference क्या लिखेंगे, VB minus VA equal to minus E dot dr. If you open it, VB minus VA equal to minus E dr cos theta. Dot product cos theta क्या हो जाएगा, VB minus VA equal to minus E is how much, 20 dr. Displacement, how much the this 1 meter. So displacement is 1. Cos theta means, theta is the angle between this 1 meter displacement. Displacement we are going from A to B. So displacement is in this direction. dr is in this direction. E is also same. A से B में जा रहे हैं तो same direction में जा रहा है. If you will move from A to B, the direction will be same. So theta will be here 0 degree. तो कितना आ गया, VB minus VA equal to minus 20 volt. Cos 0 is 1. Now this is coming minus. See, इधर गौर से देखिए, ये क्या आ रहा, माइनस। क्या मीनिंग हुआ इसका, मतलब हुआ VA बड़ा होगा किससे, VB से। I have told you, मैंने आपको बोला था कि if we'll move in the direction of electric field, जहां को लाइनें जा रही है वहां को पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कम होता है। देखिए तो, so VB में से VA को माइनस करने पे कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब बड़ा कौन है, VB। तो जो पीछे है वो बड़ा होगा, जो फील्ड के डायरेक्शन में आगे चला जाएगा वहां छोटा हो जाएगा। यस, नंबर सेकंड। नाउ B to C. Now we will consider the B to C case. Now we are coming from B to C. So what we will do? VC minus VB minus E dot dr. So if you open it, minus E dr cos theta. So this is DC, VC and VB. VC minus VB equal to is minus 20. Now this is a square we have taken. मैंने कंसिडर करा स्क्वायर है, इसकी लेंथ कितनी, how much, 1. Now cos C, we are coming down, कहाँ आ रहे हैं, B से C में आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का एंगल बनना, 90, cos 90 degree. That means it will come to 0. That means there is no potential difference. VC equal to VB. Earlier also I have told you,
फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से ये दोनों इक्वल पोजीशन पर हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं, पोटेंशियल एट दीज टू पॉइंट्स विल आल्सो सेम। किया था ना लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन। सो एट दीज टू पॉइंट्स पोटेंशियल विल रिमेन सेम। नाउ नंबर थर्ड इज C to D. C to D, what we write? BD minus BC minus E dot dr, so it will come E dr cos theta. BD minus BC, E minus 20 dr, here coming C to D, this distance is also 1 meter, so 1 cos C, electric field is rightward, we are coming left, so what is the angle is coming? 180 डिग्री। कितने का आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है, हम C से B में आ रहे हैं लेफ्ट में, कितने का आ रहा है? 180 डिग्री। cos 180 is much -1, so it will come plus 20. It proves that VD greater than, प्लस आ रहा ना, अगर प्लस आ रहा दैट मीन्स कौन बड़ा है? VD बड़ा है। सो जनरल थॉट से भी VD बड़ा ही आएगा, क्योंकि VD इज नियर द पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहीं से तो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सो दिस साइड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ को पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा, तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है इससे पहले, मैंने अपना थॉट आपको बताया, उससे आपको सही आएगा। नंबर 4 D to A, चलिए D to A क्या लिख सकते हैं? VA माइनस BD, जिसमें जा रहे हैं माइनस जिससे आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? माइनस E dr cos थीटा, खोल दिया मैंने, E20, dr is also 1 meter, cos is how much? 90, it will also come to 0, that means the potential at A and D will remain same because they are at same point, they are at the same point, getting or not? So by this way, in this way you can find out the direction. Well, so it was very easy, and by this if you are getting minus, that means the first one जिससे आप माइनस कर रहे हैं वो बड़ा है, वो छोटा है किससे? जिसे माइनस कर रहे हैं। दिस ऑल नो मैथमेटिक्स है जनरल। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस इज के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू सी इट नाउ। मोर क्वेश्चंस विल अटेम्प्ट। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and C. Question is given. Find potential difference between A and C. This is the diagram. This is E. This is given small t. This is many times CBSE. This question was in CBSE exam, CBSE board in 12th class. Many बहुत टाइम बाद आता है, NCERT में भी आपको मिल जाएगा ये और सारे क्वेश्चन में। नाउ हमने निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किन दो पॉइंट्स के बीच निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन A and C। तो क्या करें? वी नो कहाँ से जा रहे हैं हम? C से जा रहे हैं कहाँ? A पर, तो हम लिखेंगे VA माइनस BC माइनस E डॉट dr, सो वी राइट AC माइनस BC। मैंने कहा जहां से जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां को पहले लेंगे पॉइंट, तो इट विल कम माइनस E dr cos थीटा, सो इट विल कम VA माइनस BC E dr is how much? D, dr is D, cos how much? 0 degree. Why? E is right side, we are also moving right side, C to A right side, so dr is also right side, so angle between them is 0, minus ED cos 0 is 1, that means it is coming this much. So कौन बड़ा है? VC is greater than VA, VC is greater than VA. Proof? Why sir? It is coming negative. What is the meaning of negative sign? Negative sign meaning that it is coming negative, difference is coming negative, that means this is powerful. Yes or no? चलिए, so this was डायग्रामेटिकल क्वेश्चन, जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आपके पास आते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी की। अगर वेरिएबल फोर्स है, अगर वेरिएबल फील्ड है फॉर
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और वेरिएबल फील्ड, वेरिएबल फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और वेरिएबल फील्ड है, इन दैट केस व्हाट विल बी द, देखिए dv is coming minus e dot dr. If it is variable, then dv will come by integrating it dr from 1 to r1 to r2. What we have to do? We have to integrate it. Yes. So this is very important. अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. Everybody know how to find out. Now अगर आपने यहाँ से e निकालना पड़ा तो e वेक्टर क्या होगा? माइनस dv अपॉन dr, डिफरेंशिएशन ऑफ d, differentiation of v with respect to dr. If dr is the function of only, see, now there are two possibilities. Number first, if v is function of one variable, अगर v फंक्शन है वन वेरिएबल लाइक x, मान लीजिए x का वेरिएबल है, अगर v केवल एक फंक्शन का वेरिएबल है तो e इक्वल टू क्या होगा? माइनस dv अपॉन dx कांस्टेंट होगा, क्योंकि इट इज फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल. किसका फंक्शन है? ओनली वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो क्या होगा? dv अपॉन dx. नंबर सेकेंड, इफ v इज फंक्शन ऑफ ऑल थ्री x, y एंड z, देन इन दैट केस e वेक्टर होगा माइनस dv अपॉन dr वेक्टर. इसको आप लिख सकते हैं e वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर डॉट v. इसको इस तरह से लिखा जाता है इस केस. ये क्या चीज है? इसे बोलते हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल ऑपरेटर. क्या बोलते हैं इसे? डेल ऑपरेटर. डाइवर्जेंट भी बोला जाता है इसे, डाइवर्जेंट डेल ऑपरेटर. इसकी वैल्यू होती है, इसको लिखते हैं डेल अपॉन डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप. दिस इज डेल ऑपरेटर. सो यू विल गेट इजीली, यू विल गेट द वैल्यूज. यहाँ पर आपको ई भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, जैसे भी आपको मिले आपको फाइंड आउट करना है. अगर ई और डी आर दोनों ही आपको दिए हैं इन द वेक्टर फॉर्म, so you can find out its dot value. If it is variable, then you will use this formula, you will integrate it. If it is function of one variable, then this. If it is function of all the three variables, then in that case you have to apply this. Let's see, it will be very easy. ये समझ आ गया आपको? This is the relation dv. अगर variable है और non uniform है, variable functions के लिए applicable है all the data. Let's see, करेंगे तभी समझ आएगा. चलिए नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूले अपने सामने नोट कर लीजिए फौरन से. फिर क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें तो अपनी कॉपी में खुद लगाएंगे. लिखें इफ v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फाइंड फील्ड एट x इक्वल 2 मीटर. दिस इज द क्वेश्चन. सपोज क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन है इफ v इक्वल टू दिस इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट e. कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सॉल्व लगाएंगे कैसे? सही है. This v is the function of x. That means this is function of only one variable. तो क्या होगा? v नो वन वेरिएबल के बारे में क्या था? क्या कहा था हमने? e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx. माइनस dv अपॉन dx तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू माइनस d अपॉन dx. v is a x स्क्वायर प्लस b. So E equal to minus d upon dx ax square plus minus हो जाएगा सेम d upon dx b. So it will come a is a constant, constant terms होते हैं दोनों. x का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम, everybody know this is constant. It's the differentiation of constant term is 0. b is constant, x नहीं है इसमें. x का डिफरेंशिएशन होना है, x है नहीं तो उसका वैल्यू 0. कितना? minus 2ax. This is the equation of E at x equal to 2 meter. E equal to how much? Minus 2a into 2 is will come minus 4a. This is the answer. Yes, this is the answer. Get it? So very easy questions are there. बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे questions. Let's see. कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. मान लीजिए
क्वेश्चन है, इफ E equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, find potential difference between 2,2 and 4,5. Very important question I have taken. Very important question. Yes, this question is given that if E is the vector form, potential difference between these two. That means for the meaning of this question, क्या मतलब है? देखिए ध्यान से. Each vector, that means E is in some direction. There are 2 points, 2,2. Second is 4,5. Between these 2 points, our task is find out what is the potential difference. इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस दैट्स इट. we know potential difference E dot dr. Sir, why you are taking dot product? C is function of I j k. मैं dot product लिख सकता हूँ. देखिए dv minus in 11th class you know that its position vector of this point is r1 and position vector of this point is r2. So this is called dr. What is dr? dr vector will be r2 vector minus r1 vector. This is called displacement vector. क्या बोलते थे इसको? displacement vector बोलते हैं ना? Yes or no? So क्या आ जाएगा देखिए E dot r2 vector minus r1 vector. देख सकते हैं r2 vector minus r1 vector क्या आ जाएगा E minus 2i cap plus 3j cap plus 4k cap dot r2. कैसे निकालते हैं R2 वेक्टर क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्स वाई 4i कैप प्लस 5j कैप 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस r1 क्या होगा 2i कैप प्लस 2j कैप दिस इज x दिस इज y. एवरीबॉडी नो हाउ टू फाइंड आवर पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस 2j कैप साइन विल चेंज सो इट विल कम माइनस 2i कैप plus 3j cap plus 4k cap dot this is come 2i cap plus 3j cap. So it will become how much dot product everybody know k is 0 here. तो k को क्या k है नहीं तो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा i से i को माइनस 2 2 जा 4 i dot i square is 1 plus 339 plus 0 minus 13 क्या volt. This is the potential difference between these 2 points. कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे. देखिए मान लीजिए आपके पास अगला क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं. देखिए इफ मान लीजिए आपको दिया इफ v इक्वल टू दिया 100 अपॉन r या फिर मान लीजिए 343 ये दिया आपको दिया 343 अपॉन r. मैं क्वेश्चन वही करा दे रहा हूं जो कंपटीशन में आया है. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप सेट. दिस इज द क्वेश्चन. दिस वाज द क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई अगर v ये है तो हमने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होगा. चल देखते हैं. दिस इज वेरिएबल ऑफ r. हियर इज आल्सो r. नाउ वी नो ई का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर माइनस dv अपॉन dr वेक्टर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ई. यस और नो. अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं. अगर मैं इसका ई वेक्टर हटाना चाहता हूं मैं इसे लिख सकता हूं dv अपॉन dr r कैप लिख सकता हूं. वेक्टर हटाया मैंने तो उसका कौन सा वेक्टर लगाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा. कौन सा वेक्टर लगाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर. जैसे एक्स एक्सिस को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं आई कैप लगा देते हैं. x is 3 जैसे 2, 3, 4 दिया तो हमने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखते हैं ना. ये क्या है इनके यूनिट वेक्टर. पोजीशन हटेगी तो यूनिट वेक्टर लग जाएगा. सो नाउ वी नो r कैप क्या होगा. r कैप होगा वेक्टर r अपॉन इट्स मॉड. यूनिट वेक्टर ए वेक्टर हुज
Kappa is for unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. Unit vector is found out by vector divided by its mode. Mode value how we find out? Under root square of this term 2i whole square plus 3j whole square plus 6k whole square inside. Like this only you will find out this is magnitude value square of these all terms. Now under root 2 4 I square is 1 plus 9 I square is j square is also 1 plus 36 k square is also 1. You all know I square, yesterday also we have discussed j square k square equal to 1 square vector. Now under root this will become 49. How much? 49 equal to 7 meter. So mode value is coming 7. So r cap will come, r cap equal to ये हो गया r vector 2i cap plus 3j cap plus 6k cap upon 7. Mode value is 7. Now here come this side now. So it implies that E equal to क्या होगा minus d upon dr. V is what? V is 343 upon r. R gap is coming 2i cap plus 3j cap plus 6k cap upon 7. Is it? Now differentiate it. E vector equal to इसे differentiate minus 343 common d upon dr r की पावर -1 ऊपर चले जाएगा. यहाँ +1 है तो ऊपर जाके कितना आ जाएगा -1. 343 इस कांस्टेंट से बाहर ले लिया. ये ऐसे रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7. यस और नो. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. E वेक्टर इक्वल टू -343 इनटू हाउ विल डिफरेंशिएट. पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम -1 ये ऐसे रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7. इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? d अपॉन डी आर की पावर -1. कैसे करते हैं? पावर आगे और पावर में से एक कम कर देते हैं. कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 343 1 अपॉन आर स्क्वायर. सी आर के पावर -2 नीचे आएगा आर स्क्वायर. ये ऐसे रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7. क्लियर? सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? चलिए सॉल्व कर लीजिए. कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? यहां लिख लेते हैं. E वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया? 343 अपॉन आर स्क्वायर. आर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आर? 7. आर की वैल्यू कितनी थी? 7. तो 7 का स्क्वायर इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7. कट गया? कितने बार कटेगा? 7 3 जा 49 टाइम कितना आएगा? 49 अपॉन 49 आ गया है ना. 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. तो ये कैंसिल हो गए. E कितना आ गया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k. सो इट वाज वेरी इंपोर्टेंट. E उतना ही आ रहा था जितना कौन था? रेडियस वेक्टर. यस. सो दिस वाज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ये आएगा 7 स्क्वायर 28 28 हाँ दिस इज द आंसर. क्लियर? सो इट वाज वेरी इजी. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको वैरायटीज को चेक करना होता है. लेकिन वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए. देन सी द मेथड्स हाउ टू सॉल्व इट. मेथड यू हैव बिकॉज वी हैव प्रूफ दिस डेरिवेशंस आल्सो. मैंने क्या किया? डेरिवेशन प्रूफ किया हमने. तो आराम से आप भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन. बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. चलिए लेट्स सी. बोर्ड इज नॉट गोइंग टू क्लियर नाउ. लेट आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है. आपके पास वैरायटीज में क्वेश्चन कई सारे हो सकते हैं. मान लिया आपके पास आ गया क्वेश्चन इफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड e एट 1,1,1. दिस इज द क्वेश्चन. मान लीजिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है. देखिए आप. Now v is the function of x also, y also and z also. That means it is variable, not constant condition, variable condition. Now I have told you when it is function of all three, e equal to
minus dv upon dr. We can write it del vector dot r. v del ऑपरेटर लिख सकते हैं, तीनों का फंक्शन है, तो इसको क्या लिखते हैं माइनस डी अपॉन डी एक्स आई कैप, डी अपॉन डी वाई जे कैप, डी अपॉन डी जेड के कैप डॉट वी del operator. This is called del operator. E vector equal to what is the value minus dv upon dx I cap, multiply करेंगे minus dv upon dy j cap minus dv upon dz k cap. This is the condition, this is the equation. तो अगर हमको E चाहिए तो हमको क्या चाहिए dv upon dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z. तो ये है ऑपरेशन, तीनों में लग रहा है तो तीनों के लिए आ गया. अब हमें क्या चाहिए सबसे पहले dv अपॉन dx निकालते हैं. d अपॉन dx रीच x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो x वाले का डिफरेंशिएट होगा 2 into x की पावर 2 minus 1. y पे x नहीं है 0, z पे x नहीं है 0, कितना आ गया 2x. 2x. Is it clear? Then dv upon dy differentiation with respect to what y. now y के रिस्पेक्ट में करना, पहला क्या है x का क्या होगा 0 प्लस 2y 2 minus 1 प्लस z का भी क्या होगा 0, इट विल कम 2y. सिमिलरली dv अपॉन dz करेंगे तो क्या आएगा d अपॉन dz x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू z, फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 0, थर्ड इज 2z 2 minus 1, तो it will come 2z. Yes or no? So these are the values. So from A यहां रख लेंगे इन वैल्यूज को, क्या आ जाएगा वेक्टर E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx. dv अपॉन dx इज कमिंग टू माइनस 2x i कैप 2y j कैप 2z k कैप. देखिए 2x 2y 2z रख देंगे वैल्यू. सो दिस इज द इक्वेशन. अब निकालना कहां पर है एट 1, 1, 1. 1, 1 means everybody know these are three coordinate Cartesian x, y and z. x equal to 1, y equal to 1 and z equal to also 1. पुट कर देंगे. E vector equal to minus 2i cap x1 minus 2j cap y1 minus 2k cap. This is the electric field. Now only magnitude, if you require only magnitude of E, mod E. I have told you how to find out mod वैल्यू को कैसे निकालते हैं, अंडर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इट विल कम अंडर रूट हाउ मच 12. so it will come 2 root 3 Newton per coulomb. This is the answer. So these are the very important questions which come in competitive exams. You will see these questions in competitive exam. So this is the function of all the three values. Yes. So easy one. बहुत आसान सा था, टफ नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. घबराए नहीं उससे, क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए. अगर आप फिजिक्स साइंस ली है तो आप न्यूमेरिकल से नहीं भाग सकते. पास होना एक अलग चीज है, 12th पास करना इट वेरी इजीली विल गेट मार्क्स इन सीपीएस है. तो 100 मार्क्स भी आते हैं, 100 भी दिलाए. मैंने खुद ने 100 2 बच्चों को 100 आए, तो हमारे स्कूल में खुद 2 बच्चों के 100 आए. तो 100 लाना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी. बट आफ्टर 3rd what if you will not qualify any competitive exam, that means it is wastage है ना. फिर एक साल कोचिंग जाओगे, वहां पढ़ोगे, यही चीजें वापस पढ़ोगे, तब समझ आ जाएगा. चलिए अब किस तरह का और क्वेश्चन आ सकता है. आपको क्वेश्चन आता है फाइंड पॉइंट where electric field is maximum. हमने वो पॉइंट बताना है जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और क्या दिया होता है क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपका नीट में आया है कई साल. नीट के एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है ए बी एंड सी 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट लाइक दिस इट वाज गिवन. इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था. पूछा था आउट ऑफ ए बी सी एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. Now see, if you will see carefully this condition, our task is find out electric field. हमारा टास्क है इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना.
and question is given in voltage. Question किसमें है? Voltage में. That means this is the relation between electric field and voltage. So we know E vector equal to minus dB upon dr vector. मोड वैल्यू की बात करें तो E equal to dB upon dr. Now see here, potential. ये कितना है? 10. 10 में 10 जोड़ा है तो 20, प्लस 10 जोड़ा है तो 30, प्लस 10 जोड़ा है तो 40. मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम. गैप ज्यादा कम हो सकता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है. dB इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है. सो E यूनिवर्सली किस पर डिपेंड करता है? केवल dr पर कर रहा है. किस पर कर रहा है? dr पर. अब देखिए किसका dr सबसे, dr मीन्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन है ना. चलिए देख लीजिए सबसे बड़ा किसमें है. देखिए आर, डी आर ऑफ ए लेस देन डी आर ऑफ बी लेस देन डी आर ऑफ सी. सबसे बड़ा डी आर किसका? सी में. यहां सबसे बड़ा डी आर है. इन दोनों के बीच गैप सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, सबसे कम इसका है. ऐसा जिसका डी आर सबसे कम है उसका ई सबसे ज्यादा होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. तो जिसका डी आर सबसे बड़ा होगा उसका ई उतना ही छोटा होगा. तो दिस वाज द क्वेश्चन इन 2016 में नीट एग्जाम में पूछा गया था. नीट की जो आपके मेडिकल के लिए टेस्ट होता है उस पर ये क्वेश्चन आया. इजी के लिए बहुत आसान सा है. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछा है, सीबीएसई बोर्ड्स में. सीबीएसई बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन नहीं आता और कैसा क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है. लेट्स सी, देखते हैं. चलिए क्वेश्चन है, क्या पूछता है सीबीएसई बोर्ड में. देखिए ड्रॉ ग्राफ बिटवीन E and R by graph between V and R. The graph between V and R is given and your task from that graph you have to draw the graph between V and R. Let's see किस तरह का क्वेश्चन था. देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था. This is R, this was V, A, B, C, D. This was given. ये दिया हुआ था. क्वेश्चन था a graph is between V and R is given. What is our task? Our task draw the graph between E and R by this from this graph. ये V कर लीजिए इसको. E नहीं, V का ग्राफ है तो V. तो भाई ये दिया हुआ था. अगर ये पॉइंट नहीं भी दिया होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर ये पॉइंट आपको नहीं भी दिया है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आंसर में ग्राफ ड्रॉ करना है. नाउ इफ यू सी द ग्राफ इज बिटवीन बी एंड आर. टास्क इज ग्राफ बिटवीन बी एंड ई एंड आर. तो ग्राफ है ई और आर के बीच में, दिया है बी और आर में. सिंपल सा है, साफ साफ पता चला. दिस इज द रिलेशन फॉर बी एंड आर ई कंडीशन. तो क्वेश्चन ने बता दिया कि किससे सॉल्व हो सकता है. वी नो ई इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr. This is the relation between E and V. We have proved this relation. Now, one by one we will find out. Number first, A to B. So we are doing from A to B. Now come. E A to B. See, E is here V upon R. Slope है, वो भी माइनस में. This is slope. तो you can check it by 11th method. Slope से भी चेक कर सकते हैं. Slope मतलब हम लिख सकते हैं E equal to minus tan theta. Slope is called tan theta. tan थीटा से भी आप चेक कर सकते हैं इसको पॉजिटिव आएगा या नहीं. तो वैल्यूज तो निकालनी है नहीं, तो मैं सिंपल मेथड अभी आपको सिखा दे रहा हूं पहले, उससे भी मैं आपको लास्ट में करूंगा. ए टू बी, इसको ई ए टू बी होगा क्या? माइनस वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी आर. दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट. वी टू माइनस वी वन, वी बी माइनस वी ए. हेयर कौन बड़ा है? ये कितना है? 0,0. इसकी कुछ वैल्यू है तो VB बड़ा है किससे? VA से. सो EA to B क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. VB बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. यहाँ आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा. चलिए नंबर दूसरा B to C. नाउ हियर इसी फॉर्मूले को लगाएंगे. B to C क्या होगा? माइनस VC माइनस VB अपॉन DR.
Now second point is, now B is first and this is second, so V2 minus V1. Here क्या दिया, here VB equal to VC, so EBC कितना हो जाएगा, 0 होगा नहीं होगा, V ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर है. नाउ नंबर थर्ड, C2D के लिए करते हैं. C2D क्या होगा, माइनस VD माइनस VC अपॉन VR. नाउ दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. इसके लिए कौन बड़ा है, यहां पर कौन बड़ा है, VC बड़ा है किससे, VD से. VC बड़ा है VD से, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. देखिए ये VC बड़ा होगा, VC बड़ा कैसे होगा, देखिए ये 0 पर आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ये ऊपर है तो VC बड़ा होगा माइनस. अब यहां 10 से देखिए स्लोप से, हेयर और A to B थीटा इज पॉजिटिव. A to B थीटा क्या है, पॉजिटिव. tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव. tan थीटा पॉजिटिव होगा तो यहां नेगेटिव है, E किस में आ गया, नेगेटिव. नाउ B to C थीटा इज 0, सीधी लाइन है, थीटा कितना आ रहा है, 0. tan 0 इज 0 आ गया. नंबर थर्ड, C2 यहां पर क्या होगा, थीटा 0. C2D थीटा क्या है, माइनस. थीटा किस में आएगा, माइनस. इस तरफ देखा प्लस, तो इस तरफ क्या आएगा, माइनस. थीटा माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा, tan माइनस tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस थीटा. क्लियर. तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस. कैसे आया प्लस, देखिए E इक्वल टू, अगर आप रखते हैं माइनस tan माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा. साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा tan थीटा. तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इज इट क्लियर. सो तीनों पॉइंट्स पे निकल गए. अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन R एंड E. चलिए देखते हैं. इसे ओरिजिन पे है, A हो गया, A टू B, E क्या है, नेगेटिव है. A से लेकर B तक E की वैल्यू नेगेटिव है. दिस इज नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव E कर लेते हैं वैल्यू, तो हमें पता नहीं जितनी भी होगी हम लिख लेंगे. B टू C 0 है, B टू C पर क्या है, 0. दिस लाइन 0,0 पर ही रहेगी. एंड C टू D क्या है, पॉजिटिव. C से लेकर D तक की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस. अब जो भी होगी उसकी वैल्यू वो हम देख लेंगे. दिस वाज द 2.5 marks, 3 marks or around of 2.5 marks question was there in board, CBSE board. This question was in CBSE board. So this type of question also you will get this from this part. Yes. Now next, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें. तो और बहुत आसानी से किए जा सकते हैं. स्लोप से कर सकते हैं आप इसको, इस वाले क्वेश्चन को आप स्लोप से भी कर सकते हैं. स्लोप बाय स्लोप मेथड also it will be easy. In competitive exam you will not prove it like this. It will take time there. You have to do it fast. So now question here, find potential difference, find potential difference between A and C. मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्रिक है, एक चीज है चेंज हुई है. जो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E and A to B. नंबर फर्स्ट, you can take it like this. ऐसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सीधा ही आए, ऐसा ले लेते हैं. A to B, then B to C. This is given D. This angle is given how much, 45 degree. First it is coming from going from A to B. कहाँ जा रहा है, A to B जा रहा है, then B to C, then C to कहाँ आ रहा है, D. हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and C. We know E equal to minus dB upon dr. So dV equal to minus E वेक्टर फॉर्म होता है डॉट dr. Yes, dV potential by dr. If we open it, dV will become minus E dr cos theta. Now everybody know here in this equation C, it doesn't depend, ये depend नहीं करता. किस पर नहीं करता, the way
इनविजिबल। तो जिस पाथ पर आप मूव कर रहे हैं उस पाथ पर ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी पाथ में मूव करें, आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जरूरत होती है, बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव। मैंने पहले पढ़ा था, इट इज कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तो उससे जो भी चीजें निकल के आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होगा, तो वो केवल इनिशियल और किस पर डिपेंड करता है? फाइनल में। सो ए टू सी चाहिए हमको, ए टू सी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? डीवी। कहां जा रहे हैं? सी पे जा रहे हैं, तो वीसी माइनस वीए लिख लेंगे, माइनस ई डी आर डी कॉस सी। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, वी आर मूविंग लेफ्ट साइड, सो व्हाट इज द एंगल? ए से सी जा रहे हैं, ए यहां है, सी यहां है, तो कितने का एंगल बना? 180 डिग्री का। तो क्या आएगा? कॉस 180। कॉस 180 इज -1 ईडी इंटू -1 वीसी माइनस वीए इक्वल टू प्लस ईडी। यस और नो? प्लस ईडी मतलब वीसी ग्रेटर देन वीए। अर्लियर आल्सो आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम हियर, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो प्लस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां को मूव करती है वहां को पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है, तो यहां को मूव कर रही है तो सी पे ज्यादा होना चाहिए, पर कम होगा। बिल्कुल। सो इट प्रूफ, ये एक बात प्रूफ कर रहा है कि वो ए से बी जाए या बी से सी जाए, वो कुछ भी करे, हमें जो दो पॉइंटों के बीच में निकालना है, करें। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने आपको ये दे देता, फाइंड बिटवीन बी टू सी निकालना होता है, सी बी टू सी। तो क्या करते हैं? बी टू सी निकालते तो वी सी माइनस वी बी माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा कितना डिग्री हो जाता? 90, बिकॉज वी आर कमिंग लाइक दिस, इनिशियल फाइनल पॉइंट 90 डिग्री का एंगल बनना, तो कितना आ जाता है? 0। दैट मींस द पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। दिस ऑल विल यूज इन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। सर अगर हमसे ए टू बी कहता तो इन दैट केस अगर ये नहीं देता वो, तो हम क्या करते हैं? इसके कंपोनेंट कर लेते हैं हम, डी, डिस्टेंस ऑफ डी मूव करा, कॉस थीटा आ जाता है कंपोनेंट। क्लियर? सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस. So this was the topic, and this topic is very important for competitive exam. Most of question I have explained, either it is for competitive exam, board, सारा क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया, जितना भी आपको कराया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एलएन के नोट्स, जब आप एलएन के नोट्स देखेंगे नीट एग्जाम्स के लिए, तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, नीट और जेई मेंस का इतना ही सिलेबस होता है, ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 12। तो अगर आप क्लास 12 को ही अच्छे से पढ़ें तो आप गेन कर सकते हैं। यस, तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, नीट एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान आते हैं क्वेश्चंस को, एंड फिजिक्स इज टफ फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स, सो बट इट विल नॉट टफ विथ मी, इफ यू विल फॉलो मी देन इट विल बी इजी। यस, सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।